Good morning, dear student. Today we are going to see chapter number 4, angles and pairs of angles. So, first of all, we will see some basic information about angle. So, first of all, student, we will see some basic information about angle. So, in this figure, ABC, this is the figure of angle. So, here angle ABC is given. Which angle is there here? Angle ABC. Do you know about vertex? What is mean by vertex? See in this figure, this point B, this end point of two ray. See here ray A and ray B. Two rays are given and end point of these two ray. This end point is common and this point is called as vertex. So write the name of angle vertex is B. Then what is mean by arms? See here, angle ABC has two arms. Arms AB and BC. ये दो जो साइड है एंगल के उनको बोलते हैं आर्म्स. सो और एंगल्स को आर्म्स को कैसे पढ़ते हैं हम? ABBC. सो ये फिगर में एंगल के दो आर्म्स है AB और BC. देन वर्टेक्स है B. देन आर्म्स पे कौन से पॉइंट है? सी हियर इन दिस फिगर ऑन आर्म्स पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. दिस टू पॉइंट्स आर देयर ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल. नाउ सी the interior and the exterior of an angle. So what is mean by interior portion and what is mean by exterior portion? So see in this figure, this portion which is inside the angle, this portion is called as the interior portion. So in this interior portion, which points are there? Point N, point M, point T and point O. These 4 points are lie in the interior portion. Then this is this portion which is outside of the angle. This portion is called as the exterior portion. So there which points are there in the exterior portion of an angle? Point G, D, then S and E. These points are in the exterior portion. And see here angle PQR is given. So which points, which are arms of the angle? Angle QR and angle, side PQQR and side PQ. These two are the arms of the angle. ये दोनों जो साइड्स है उसको बोलते हैं एंगल के आर्म्स. सो आर्म्स पे कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट P and point R. These 2 points are there on the arms of the angle. This portion is called as the interior portion and this portion is called as the exterior portion. Now student, next concept which is given in your textbook is adjacent angle. So we will see what is meant by adjacent angle. See in this figure, here angle BMD is given. In this BMD angle, again 2 angles are there. See angle BMQ and angle QMD. ये कॉमन एंगल में और एक दो छोटे छोटे एंगल यहाँ पे फॉर्म होते हैं. एक ये वाला एंगल और एक ये एंगल. तो ये एंगल में ये दोनों एंगल के लिए एक कॉमन रे है. एंगल BMQ एंड एंगल QMD. ये दोनों के लिए एक कॉमन रे है. वो कौन सी है? MQ. सो common, the MQ is the common arm of the angles BMQ and QMD. Also this vertex, which is vertex here? M. So these two angles have a common vertex which is M and their interior portion also different. See here
this angle have this interior portion and this angle have this interior portion. So such a type of angles which have common vertex, common arm and separate interiors are said to be adjacent angles. See, in your textbook definition is given: two angles which have a common vertex, common arm and separate interiors are said to be adjacent angles. Now student, we are going to see practice set number 15. Now see practice set number 15. Question number 1 is observe the figure and complete the table for angle AWB. मीन्स वी हैव टू ऑब्जर्व दिस फिगर. हमें ये फिगर ऑब्जर्व करके ये जो टेबल यहाँ पे दिया है वो कंप्लीट करना है. सो विच पॉइंट्स आर देयर? फर्स्ट इज पॉइंट इन द इंटीरियर. विच इज इंटीरियर पोर्शन हियर अबाउट दिस एंगल. ये एंगल के लिए ये पूरा जो पोर्शन है वो है इंटीरियर पोर्शन. सो इंटीरियर पार्ट में कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट आर, पॉइंट एन, एक्स एंड सी. सो पॉइंट इन द इंटीरियर, we have to write the names of the point R, N, C, X. Then points in the exterior. In the exterior portion, which points are there? See, T, U, Q, V, Y. T, U, Q, V, Y. Points on the arms of the angles. Which is the arms of the angle? Here two arms are there. Arms A, W and W, B. ये दोनों जो साइड से ये है एंगल के आर्म. तो इन पे कौन से पॉइंट्स है? सी, पॉइंट A, then G, then B and again see this is also point W. A ये वर्टेक्स भी एक पॉइंट है. A, W, G, B. A, W, G, B. So question number 2 is name the pairs of adjacent angles in the figure below. यहाँ पे दो फिगर्स दिए गए हैं, आपको एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स के नाम लिखने हैं. वी हैव टू राइट द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फ्रॉम दिस टू फिगर. सो स्टूडेंट्स, सी इन दिस फिगर which are the adjacent angles. See here, these two angles are adjacent angles because they have common vertex and this common arm. So this is one pair of adjacent angles. Again this is one pair of adjacent angles. यहाँ पे ये एक पेयर जो है ये आएगी कौन सी? ये एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी. ये दोनों एंगल आप ऐसे भी बोल सकते हैं बी एन ए और बी एन सी और सी एन बी, ए एन बी, ऐसे भी आप एंगल को पढ़ सकते हैं. ये दोनों ये एक काम कॉमन ये दोनों एंगल में और ये वर्टेक्स कॉमन है. अब देखिए दूसरी पेयर आएगी ये एंगल, ये वाले एंगल की, बिकॉज यहाँ पे ये जो साइड है ए एन ये कॉमन है ये दोनों के लिए और एन वर्टेक्स कॉमन है और सेपरेट इंटीरियर ये दोनों के. तो ये एंगल की पेयर आएंगी एंगल ए एन बी, ए एन सी. देन थर्ड पेयर इज दिस एंड दिस. ये तीसरी वाली पेयर आएंगी. कौन सा एंगल से यहाँ पे? एंगल बी एन सी, ए एन सी, बिकॉज यहाँ पे एन सी कॉमन आर्म है और ये वर्टेक्स से कॉमन एन और ये दोनों सेपरेट इंटीरियर से. तो हमें एंगल 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर हियर. फर्स्ट इज एंगल ए एन बी एंड एंगल ए एन सी. ए एन बी, ए एन सी, this is first pair. Then second is angle B N A and angle B N C. B N A, B N C. Third is angle C N A and angle C N B. C N A, C N B. Now see
second figure is given. In this figure, see only first one pair is there of adjacent angles. सिर्फ एक पेयर है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ये जो एंगल है इनके लिए ये कॉमन आर्म है, देन ये कॉमन वर्टेक्स है और सेपरेट इंटीरियर है. अगर ये नहीं आएगी, ये एंगल अलग है ये दोनों से. दिस इज डिफरेंट एंगल बिकॉज दिस हैव अ हियर vertex is different. This angle have q vertex, here vertex is different, so only one pair is there, which is angle PQT and angle PQR. Only one pair of adjacent angles. Then question number 3. Are the following pairs adjacent angles? If not, state the reason. सी स्टूडेंट, यहाँ पे एक फिगर दी है आपको. ये फिगर से ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं एंगल्स के, ये एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं ये आपको बताना है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं वो भी बताना है. नो फर्स्ट पेयर इज एंगल PMQ, एंगल RMQ. So here, which is PMQ, angle PMQ and angle RMQ. So student, this figure is given in your textbook for question number 3. हमें ये फिगर से ये जो पेयर्स दिए हैं वो पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं वो हमें बताना है विथ रीजन. So first pair is angle PMQ and angle RMQ. So here see, which is angle PMQ? PMQ ये एंगल, ये वाला एंगल, एंड एंगल RMQ ये एंगल. सो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स है क्या? यस, दीज आर एडजेसेंट एंगल बिकॉज दीज हैव कॉमन आर्म. ये दोनों एंगल के लिए ये कॉमन आर्म है MQ. देन इनके वर्टेक्स भी कॉमन है, वर्टेक्स M, और इनके इंटीरियर पोर्शन ये दोनों भी अलग अलग है, सेपरेट इंटीरियर्स. देयरफॉर दिस इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. देन सेकंड पेयर इज एंगल RMQ and SMR. See here, RMQ means ये पूरा वाला, एंड एंगल SMR मीन्स ये सिर्फ ये इतना ही एंगल, मीन्स ये पूरा वाला एंगल एंड ये एक एंगल. ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स है क्या? नहीं है. वाई? बिकॉज देयर इंटीरियर आर नॉट सेपरेट. ये जो एंगल है इसके लिए पूरा इंटीरियर है, और ये जो एंगल इसके लिए ये इंटीरियर मीन्स ये इसका इंटीरियर ये एंगल के इंटीरियर में ही प्रेजेंट है, इसलिए ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं है. देन एंगल RMS एंड एंगल RMT. सी हियर, RMS एंड एंगल ये फर्स्ट वाला एंगल RMS एंड RMT. सी दिस, ये फर्स्ट और ये पूरा RMT मीन्स यहाँ तक. सो स्टूडेंट्स, अगेन वही रीज़न आएगा. दीज आर नॉट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेट. ये इंटीरियर्स कॉमन है उनके, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है. तो आपको आंसर में नोटबुक में ऐसे लिखना पड़ेगा कि दीज आर नॉट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर इंटीरियर आर नॉट सेपरेट. आई विल गिव इन राइटिंग. देन फोर्थ इज SMT, एंगल SMT. ये दिस एंगल, ये वाला एंगल is SMT, दिस इज एंगल. एंड एंगल RMS मीन्स सी SMT एंड SMT ये एंगल आएगा, एंड RMS मीन्स ये एंगल. सो इज दिस पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल? यस, ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है बिकॉज विच इज कॉमन आर्म? सी हियर, SM, RMS एंड SMT. SM जो आर्म है वो कॉमन है,
वर्टेक्स कॉमन है एम और उनके इंटीरियर भी सेपरेट है, तो ये पेयर है, दिस इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. So student, in this way we have finished practice set number 15. Now student, we are going to see practice set number 16, which is based on complementary angles. Complementary angle. So first of all we will see what is meant by complementary angle. If the sum of measure of two angles is 90 degree, they are known as complementary angle. अगर आपको दो एंगल्स दिए हैं और उनके मेजरमेंट की सम जो है अगर वो 90 आएगी, 90 डिग्री है, तो वो दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल सपोज ये फिगर है एंगल पी क्यू आर. व्हाट इज मीन बाय दिस आइकॉन? दिस इज राइट एंगल. सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल? 90 degree. Suppose this is angle PQR. Here R point is there. PQR and this is suppose S. So here angle PQS and SQR. अगर ये दोनों एंगल की एडिशन कितनी है, मेजरमेंट कितनी है, उनकी सम है 90 डिग्री. बिकॉज ये पूरा एंगल है 90 डिग्री का, ये दोनों के मेजरमेंट की एडिशन है 90 डिग्री. तो इनको हम बोल सकते हैं दे आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. हियर एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर. सो ये दोनों एंगल है म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज देयर सम ऑफ मेजरमेंट इज 90 डिग्री. नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिस सेट नंबर 16. सो what is the question of practice set number 16? See from your textbook. This is practice set number 16. The measures of some angles are given below. Write the measures of their complementary angles. यहाँ पे आपको सम एंगल्स के मेजरमेंट दी है, मेजर्स दिए है 40 डिग्री. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है उसके मेजरमेंट कितनी आएगी ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट फर्स्ट एंगल इज़ गिवन 40 डिग्री. सो 40 डिग्री वाला जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट मीन्स हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. तो सपोज लेट द मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स. तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है, उसके मेजरमेंट हमें निकालनी है, उसको सपोज वो एंगल को हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं. तो हमें क्या लाइन लिखनी है? लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो उसको हम कुछ तो भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को. तो हम उसको सपोज देते हैं एक्स, नाम दे देते हैं हम उसको एक्स. सो लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज एक्स. सो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 40 का और 40 की उनके मेजरमेंट की एडिशन कितनी आएगी? 90. सो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेजर्स की एडिशन है 90 डिग्री. इसलिए हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स है दोनों, उनमें से एक की मेजरमेंट है 40, तो दोनों की एडिशन है 90. तो ये अगर दो वैल्यू है ये इक्वेशन में, तो हम थर्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे? देखो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90. तो हमें सिर्फ एक्स चाहिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी. तो 40 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए 40 एक्स के साथ एडिशन में है, राइट. ये दोनों के बीच में एडिशन है. तो जो 40 जब इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ से सब्सट्रैक्ट. तो क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 40. ये जो 40 इसके साथ एडिशन में है वो अपोजिट साइड में जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री. सो 40 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसकी मेजरमेंट आएगी 50 डिग्री. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं 40 प्लस 50 कितना आता है? 90. तो दे दोनों की एडिशन 90 होनी चाहिए, इसलिए आंसर है आपका 50 डिग्री. नाउ सी सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल कौन सा एंगल दिया है आपको? सेकंड मेजरमेंट इज गिवन 63 डिग्री. अगेन सेम सोल्यूशन आएगा 63 प्लस एक्स. सपोज इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम कंसिडर करते हैं एक्स,
तो दोनों के मेजर्स की एडिशन कितनी आएगी 90 डिग्री। सो अगेन सेम, ये 63 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र होके क्या हो जाएगा 90 से सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि this 63 is in addition, so in the opposite side it will get subtract from the 90. So what is the subtraction of 90 and 63? दोनों की subtraction आती है 27 degree. Therefore complementary angle is of 27 degree. So student, you have to solve this all example in the same way. Now we will see question number 2. So what is question number 2 is given y minus 20 degree and y plus 30 degree are the measures of complementary angles. Find the measure of each angle. So यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दोनों एंगल की मेजरमेंट आपको ऐसे दिए है, तो आपको एक्चुअल मेजरमेंट क्या है वो एंगल्स की वो फाइंड आउट करना है. So measurement of first angle is given y minus 20 degree and measurement of second angle is y plus 30 degree. So what is the addition of these two angle? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये दोनों की एडिशन कितनी आएगी? यस 90 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री. सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो y है ये दोनों की पहले एडिशन हो जाएंगी, तो y प्लस वाई प्लस ये जो नंबर्स है इनके अभी हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 30 और ये 20 माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे उनकी एडिशन कर ली. सो y प्लस वाई 2y प्लस एज इट इज़ एंड 30 प्लस है और माइनस 20. सो यहाँ पे साइंस डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे 30 और 20 की सब्सट्रैक्शन. सो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर ये 2y एज इट इज़, अब ये 10 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ये 10 है एडिशन में, तो ये यहाँ पे जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 10. सो 2y इज इक्वल टू 10. 90 माइनस 10 मीन्स 80. अब देखिए स्टूडेंट, ये 2 और y ये दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन. जब यहाँ पे दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मीनिंग होता है हमेशा दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है. तो ये जो हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें सिर्फ y यहाँ पे रखना है और 2 को इधर ट्रांसफ़र करना है. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट वाला ऑपरेशन होता है डिवीजन. सो ये 2 राइट अपोजिट साइड में जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. सो 80 डिवाइडेड बाय 2. सो क्या आएगा आंसर? 8 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 0 एज इट इज. सो आंसर आ जाएगा 40. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 40 डिग्री. सो फर्स्ट एंगल कौन सा है स्टूडेंट? ये देखिए फर्स्ट वाला एंगल y माइनस 20. सो y माइनस 20 में आपको y की वैल्यू रखनी है. सो 40 माइनस 20, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? 40 माइनस 20, दैट इज 20 डिग्री. एंड सेकंड एंगल इज y प्लस 30 डिग्री. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? 40 प्लस 30, y प्लस 30. सो 40 प्लस 30 70. सो आ गया आपका आंसर. फर्स्ट वाला एंगल है 20 और सेकंड वाला आंसर है, सेकंड वाला एंगल है 70. दोनों की एडिशन 90 डिग्री आती है. देखिए 20 प्लस 70 90. देयरफॉर दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है. सो इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट नंबर 16.